19 1910 ஆண்டிலே சுதந்திர இந்தியாவிலே அதிகம் சொல்லடிப்பட்டவர், வில்லனாகவே சித்தரிக்கப்பட்டவர், இன்றளவும் கூட விமர்சனத்திற்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நபர் பிறந்தார். ஆம், ராமச்சந்திர விநாயக கோட்சே என்பவர் பிறந்தார். ஆம், காந்தியை கொன்ற கோட்சே பிறந்த தினம் இன்று. நாத்துராம் கோட்சே என்று அழைக்கப்பட்டாலும் அவர் பிறந்த போது அவருக்கு இட்ட பெயர் ராமச்சந்திர விநாயக் என்பதாகும். 3 குழந்தைகள் பிறந்து அவை இறந்து விடவே 4வதாக பிறந்த மகன் இறந்து விடக்கூடாது, இது தெய்வ குற்றம் என்று நினைத்து அவருடைய பெற்றோர்கள் மகனாக பிறந்தாலும் கூட ஒரு மகளை போல ராமச்சந்திரன் வளர்த்தார்களாம். மூக்கு குத்தி பெண்ணை போல வளர்த்தார்களாம். ஆகவேதான் நாத் ராம் என்று இவர் அழைக்க துவங்கினார்கள். மராட்டியிலே நாத் என்றால் மூக்குத்தி என்று பொருளாம். ஆகவே மூக்குத்தி ராமன் என்பதைத்தான் நாத்துராம் என்று அழைத்தார்களாம். அப்படித்தான் ராமச்சந்திரா என்ற பெயர் மறைந்து நாத்துராம் கோட்சே என்ற பெயர் இவருக்கு நிற்கிறது. சிறு வயதிலேயே துடிப்பானவர், பள்ளி படிப்பிலே இயல்பாக நாட்டமில்லை, ஆனால் பொது அறிவு, கூர்ந்து கவனிக்கின்ற தன்மை, நல்லது சிந்தித்தல், இயல்பாகவே தெய்வ நாட்டம் என்கின்ற இருக்கின்ற இவருக்கு சாவர்கரோடு தொடர்பு ஏற்பட்டு அதன் மூலம் சாவர்கருடைய வழிகாட்டுதலின்படி சுதந்திர போராட்டத்திலே இவர் ஈடுபடுகின்றார். 1932 இந்து மகாசபை உறுப்பினராகின்றார். சாவர்கர் சொல்படி இந்துத்துவம் என்பது தேசியம் என்பதை முழுவதும் உள்வாங்கி இந்த பாரத நாட்டுக்கு இந்து சமுதாயத்துக்கு பாடுபட வேண்டும் என்பதை இவர் மனதில் முழுமையாக நிறுத்தி கொண்டு அதன் பிறகு மிக துடிப்போடு செயல்படுகின்றார். பின்னர் 1942 ஹிந்து ராஷ்டிர தள் என்கின்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி இது ஹிந்து ராஷ்டிரம் தான் என்பதற்காக இவர் பாடுபடுகின்றார். ஹிந்து சமுதாயம் காக்கப்பட்டால்தான் இந்த நாட்டிலே அமைதி நிலவும் என்பதை ஆணித்தரமாக நம்பினார். இவர் காந்தியை பெரிதும் வைத்தவர் என்பதுதான் உண்மை. காந்திக்கும் இவருக்கும் எவ்விதத்திலும் தனிப்பட்ட பகை கிடையாது, வெறுப்பு கிடையாது. கோட்சே சொல்கின்ற ஒரே விஷயம், எந்த ஒரு தனி மனிதனாலும் அவன் தேசத்தை விட குறைந்தவன் தான். தேசம் முதல் எந்த தனியவரும் 2வது பட்சம் தான். அந்த வகையிலே காந்தி மிக பெரியவர் மதிக்கின்றேன் என்றாலும் கூட அவருடைய கொள்கைகள், நடைமுறைகள், சிபாரிசுகள் என்பது இந்த தேசத்திற்கு விரோதமாக இருக்கின்றது என்றுதான் சொல்லுகின்றேன் என்று தன்னுடைய வாதத்தை சொல்லுகின்றார். ஆகவே இவர் காந்தியை சுற்றது கூட தனிப்பட்ட தன்னுடைய விருப்பினால் அல்ல, இந்த பாரத சமுதாயம் பின்னாளிலே வலுவோடு வாழ வேண்டும், இந்து சமுதாயம் வலுவோடு வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரே எண்ணத்தில் தான் இவர் காந்தியை கொண்டாரே அன்றி எவ்விதத்திலும் தனிப்பட்ட பகையோ சுய முடிவோ யாருடைய தூண்டுதலோ இல்லை. சாவர்கரை தூண்டினார்கள் என்று சொல்லுவார்கள். சாவர்கர் எல்லளவும் இதில் ஈடுபடவில்லை, தன்னுடைய சுய முடிவிலே செய்த விஷயம் என்று கோட்சே தன்னுடைய வாக்கில சொல்லுகின்றார். அப்படி முழுக்க முழுக்க தேசியவாதியாக வாழ்ந்தவர் நம்முடைய நாத்துராம் கோட்சே ஆவார். அவர் காந்தியை சுடுகின்ற போது இஸ்மாயில் என்று கையிலே எழுதி கொண்டு முஸ்லிம்கள் மேல் கெட்டபடி பேர் வரவேண்டும் செய்தார் என்று இன்றைக்கு வரலாற்றை திருத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சுட்டதும் அவர் கையை உயர்த்தி நான் தான் சுட்டேன் என்று நேரடியாக சொன்னவர். ஆகவே எள்ளளவும் உள்ளும் புறமும் இரட்டை வேடமோ நடிப்போ இன்றி தேசம், இந்த பாரத தேசம் என்றைக்கும் வலுவாக இருக்க வேண்டும், இந்து சமுதாயம் வளத்தோடு வாழ வேண்டும், உலகின் குருவாய் இருந்து உலகத்துக்கு அமைதி ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा चौरी चौरा, जहां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ऐसे में सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया और पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है और ऐसे में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चौरी चौरा के पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस हिंसा से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ब्रिटिश शासन ने अभियुक्तों पर आक्रामक रूप से मुकदमा चलाया और 225 आरोपियों में से 172 को तुरंत मौत की सजा सुना दी। अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अंततः दोषी ठहराए गए लोगों में से केवल 19 को फांसी दी गई।
चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण लेकिन हिंसक घटना थी, जिसने आंदोलन की दिशा और गांधी जी की रणनीति को परिवर्तित करके रख दिया। नॉट टू मेनी में ब्रिटिशर्स एक बड़ा कदम उठाते हैं स्लेवरी ऑबलिशन एक्ट को पास करके, जिसके तहत ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनीज में स्लेवरी को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद भी गुलामी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत होती है, जहां भारतीय लोगों को इंडेंचर्ड लेबर के रूप में शोषण किया जाने लगता है। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब ये होता है कि ये गरीब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, जिसमें उन्हें कुछ सालों तक काम करना होता था और बदले में उन्हें थोड़े बहुत पैसे, खाना और रहने की जगह मिलती थी। अक्सर इन लोगों को धोखे से रिक्रूट किया जाता था और काम की शर्तें भी इतनी कठिन होती थी कि ये लगभग स्लेवरी जैसा ही था। ये लेबरर्स जो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों से आते थे, इन्हें मॉरिशस, कैरेबियन, फिजी और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भेजा जाता था। वहाँ ये लोग रेलवेज में और खेतों में काम किया करते थे। इनका सफर बहुत ही मुश्किल भरा होता था, जिसमें बहुत से लोग बीमारी और भूख की वजह से ही मारे जाते थे। 1917 में ये सिस्टम भी ऑफिशियली खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इस चीज ने ब्रिटिश एम्पायर की नीति और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को दिखाया, जहाँ ह्यूमन राइट से ज्यादा आर्थिक फायदे को चंद्र बोस ने गांधी जी के इस कथन का विरोध किया। परिणाम स्वरूप गांधी जी सुभाष बोस को भी अपना शत्रु समझने लगे। परिश्रम से हमें आजादी मिली, वो एक झूठा इतिहास लिखना चाहते हैं। जब तक देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदान को अंधेरे में रखा जाएगा, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इतिहास के सवेरे से वंचित रहेगी। आदर आदर 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी, वो ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई और जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा, उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। जिस दिन ये घटना घटी, संयोगवश मैं दिल्ली में ही था। मैंने अपनी आंखों से गांधी जी की जिद को पूरा होते हुए देखा। कड़ाके की सर्दी और वर्षा में कपकपाते हुए वो लोग बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु उस भव्य भवन में रह रहे गांधी जी तक उन निराश्रितों की पुकार नहीं पहुंची। ये मर्मस्पर्शी दृश्य, जिसे देखकर कठोर से कठोर मनुष्य का हृदय भी द्रवित हो जाए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। क्या उन निराश्रितों ने अपनी मर्जी से उन मस्जिदों में डेरे डाले थे? क्या गांधी जी को उन विषम परिस्थितियों की कल्पना नहीं थी, जिनसे बाध्य होकर वो बदनसीब उन मस्जिदों में शरण लेने को मजबूर हुए थे? यदि उन मस्जिदों को खाली कराया जाना उचित था, तो पाकिस्तान के मंदिर खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने की मांग गांधी जी ने क्यों नहीं रखी? यदि वो ऐसा करते, तभी यह सिद्ध होता कि गांधी जी निष्पक्षता से हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक थे। परंतु गांधी जी ने पाकिस्तान और वहां के मुसलमानों के सामने अपना अनशन खोलने के लिए एक भी शर्त नहीं रखी, क्योंकि अपने अनुभव से उन्हें मालूम था कि उनके अनशन का जिन्ना और उनके अनुयायियों पर कोई असर नहीं पड़ता। गांधी जी ने अपने अनशन से भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए ना देने के निर्णय को भी पलटवाया, जबकि उन्हें भली भांति पता था कि इस रकम का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध चल रहे युद्ध में अपनी विजय के लिए करेगा। वो अनेकों बार जिन्ना से मिलने गए और सदा उन्हें जिन्ना भाई अथवा कायदे आजम कहकर संबोधित किया, लेकिन एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की। गांधी जी की जिस आध्यात्मिक शक्ति और अहिंसा की महिमा का सब जय जयकार करते हैं, वो जिन्ना की दृढ़ता के सामने उनसक सिद्ध हुए।
जब गांधी जी को ये दिखाई दे चुका था कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए किसी दूसरे नेता को जिन्ना और मुस्लिम लीग से निपटने का कार्य सौंप देना चाहिए। परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पर इतनी भारी पड़ी कि राष्ट्र के दो टुकड़े हो गए। हमारे त्यागी और दूरदर्शी नेताओं ने संपूर्ण भारत की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, परंतु देश के विभाजन से वो संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास विफल हो गया। लगाया था आजीवन कारावास अथवा देश से निर्वासित होने की यातनाएं भोगी थी। क्या उन्होंने इसी विभाजित देश के लिए अपने जीवन दांव पर लगाए थे? छलपूर्वक भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। पंजाब, बंगाल और सीमा प्रांत के हिंदुओं के भविष्य की किसी ने कोई चिंता नहीं की। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधी जी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर भारत पलायन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन हजारों हिंदू पुरुषों का संहार और हजारों हिंदू स्त्रियों की अवमानना होती रही, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला गया। यदि समाचार पत्र पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में कुछ लिख देते तो उसका अर्थ ये लिया जाता है कि समाचार पत्र हिंदू और मुसलमानों में मतभेद फैलाने का काम कर रहे हैं और उन पर प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू कर दी जाती। ये कहना अनुचित नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मूल कारण गांधी ही है। तो ऐसा संघर्ष जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। मैं अवश्य मरूंगा, परंतु देश अमर होगा, परंतु विश्व में भारत का नाम होगा। और यही सोचकर मैंने गांधी जी का वध करने का निर्णय लिया और अपना ये निर्णय किसी को नहीं बताया। अंततः 30 जनवरी 1948 को मुझे मेरा निर्णय साकार करने में सफलता मिली। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैं पापी हूं, और यदि देशभक्ति प्रशंसनीय है, जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी उसके पश्चात तो, और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले पश्चाताप नहीं है। गांधी जी ने इस देश के प्रति जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं, और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था। मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी है और ना किसी के प्रति कोई दुर्भावना। आप मेरे बयान को जिस प्रकार देखना चाहे देखिए, और अपनी भावना के वशीभूत जो कार्य मैंने किया है उसका जो दंड मुझे देना चाहे देखिए। मैं किसी प्रकार की कोई दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में मेरे साथ कई लोगों की है और केवल मैं कि मैंने सैकड़ों लोगों के बीच दिन के समय गांधी जी पर गोलियां चलाई, परंतु मैंने भागने का प्रयत्न नहीं किया और ना ही स्वयं पर गोली
30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, ये तो सबको पता है। पर इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी के डेथ के 3 घंटों के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गोडसे का नाम, पता, उसकी जाति और जाति में चितपावन ब्राह्मण, ये सारी डिटेल्स पहुंच गई। इसके बाद 1984 के सिख दंगों जैसा ही एक दंगा गांधी के अहिंसावादियों ने शुरू किया, चितपावन ब्राह्मणों का नरसंहार। उषा काल अखबार के अनुसार सतारा जिले के 400 गाँवों में 1500 ब्राह्मणों के घर उसी रात जला दिए गए। चितपावन ब्राह्मण के सरनेम वाले लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। पंचगनी में एक स्कूल, सांगली में एक मिल और कोल्हापुर का एक फेमस स्टूडियो सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उनके ओनर्स चितपावन ब्राह्मण थे। सेंट्रल प्रोविंस के होम मिनिस्टर डीपी मिश्र ने जब कई कांग्रेस लीडर और कार्यकर्ता को गिरफ्तार कराया तो पार्टी की तरफ से इन दंगाइयों को रिहा करने के लिए दबाव बनाया गया। मेडिकल डॉक्टर नारायण सावरकर को अहिंसक गांधीवादियों की भीड़ ने उनके घर से घसीटकर बाहर लाया और उन पर तब तक पत्थर बरसाए जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। सरकार ने इस जेनोसाइड को बड़ी ही चालाकी के साथ छुपा लिया। मेरे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है।